proper way. Okay, Kashish, start the prayer. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, and to give thanks to you in all things. Amen. Okay, so good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So today, firstly, we will finish the threatened species Good in the. morning, ma'am. Yes. Good morning, everyone. So in the last class we have done the 8 जो हमने रेड लिस्ट कैटेगरीज देखी थी according to the IUCN. So 8 red categories we have discussed. So out of 8 में जो 3 हैं that are very very important, that is the endangered species, the rare species and the vulnerable species. ठीक है. So firstly we will see थोड़ा सा endangered species को, rare species और vulnerable species को study करेंगे. Then we will start with the next topic, that is the conservation of biodiversity. Okay, so screen is visible. Yes. Yes, screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So first of all of you just read endangered species. What are the endangered species? Well, these are those species whose number have been reduced greatly to a critical level. उसने कहा whose number have been reduced to a critical level or whose natural habitat have been adversely affected. मतलब कि endangered species कौन सी है? वो टैक्सॉन, वो ग्रुप या वो स्पीसीज जो उसने कहा रिड्यूस्ड टू ए क्रिटिकल लेवल, बहुत ज्यादा कम हो गई है, या फिर उसका जो हैबिटेट है एडवर्सली इफेक्ट हो गया. सो दीज आर नियर एक्सटिंक्शन और मे बिकम एक्सटिंक्ट. नियर एक्सटिंक्शन है या फिर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर इफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू. जो कॉजेटिव फैक्टर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे तो ये जो स्पीसीज हैं जो जिनका नंबर ऑलरेडी कम हो चुका है, जिनका हैबिटेट ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है, so these species in the near future become extinct और near extinction हो जाएंगी या फिर it become extinct. Okay, so उसने कहा in India the Wildlife Protection Act 1972. Okay, so just name learn the date of the act. Wildlife Protection Act in the year 1972 provide schedules categorizing the fauna of India based on their conservation status. जो फर्स्ट शेड्यूल था, शेड्यूल 1 में इसका लिस्ट द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन. तो आपने यहाँ शेड्यूल फर्स्ट पे फोकस करना है. शेड्यूल फर्स्ट में क्या है? रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं विच आर प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन. जिनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई, अगर नहीं देंगे तो उसने कहा कि दे बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर. ओके, सो उसने कहा इट इज कंसीडर्ड दैट about 81 species of mammals, okay, you can see here 81 species of mammal, 38 species of birds, this you have to learn, and 18 species of amphibian and reptiles are endangered in India. ये India का डाटा है. Okay, so 81 species of mammals, 38 species of birds and 18 species of amphibian and reptiles are endangered in India. But ये डाटा जो है it can vary from, थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, जैसे 38 है, 37 और बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डाटा जो वेरी कर सकता है, ये पर्टिकुलर नंबर नहीं होता. बट दिस इज द मेन. उसने कहा कि 81 मैमल्स के हैं, 38 वर्ड्स के हैं, 18 स्पीसीज जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के हैं दैट आर इंडेंजर्ड इन इंडिया. ओके, सो बड़ी सारी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं. इंडेंजर जैसे आपका रेड पांडा है, नीलगिरी लैंगूर है, स्नो लेपर्ड है. ओके, सो ऑल दीज आर इंडेंजर्ड स्पीसीज. यू ऑल हैव टू लर्न कि 2-3 आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं वो पता होनी चाहिए. एनी टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको. सो रेड पांडा, नीलगिरी, स्नो लेपर्ड, rhinoceros, okay, all are the endangered species in India. Okay, next you are having the vulnerable species. उसने कहा vulnerable species are those species भी हो सकती है, एक टैक्सा भी हो सकता है, खाली एक अकेली species नहीं, एक टैक्सा भी हो सकता है. ओके, रैंक जो है whose populations are still abundant, population अभी तक काफी है, but their home range has been adversely affected. तो population अभी तक है, population is enough, ठीक है, अभी तक population काफी है, but जो home range है, जो उनका habitat है, that has been affected, so they become endangered. वो endangered है, ये vulnerable है. तो endangered को रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का, वल्नरेबल को रिस्क है इंडेंजर्ड होने का. ओके, सो दे बिकम इंडेंजर्ड इफ दिस लिमिटेड दिस फैक्टर कंटिन्यूड.
सो अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, गोल्डन लैंगूर है, लेपर्ड cat है, black buck है. These are the examples of the vulnerable species. Okay, so vulnerable species are the animals or the species having the danger of become मतलब उनको रिस्क है टू बिकम इंडेंजर्ड. ओके, अगर जो पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, बट इनकी पॉपुलेशन अभी तक नॉर्मल है, पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द हैबिटेट इज हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड, सो उसकी वजह से वो इंडेंजर्ड बन सकते हैं. ओके, two examples are there, golden langur, leopard cat. Okay, so you have to learn कि endangered species में कौन कौन से हैं, vulnerable में कौन से हैं. These are very very important. Okay, then black buck is also the example of vulnerable species. Okay, then next you are having the rare species. These are those threatened species, and just remember ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, these all comes under the threatened species. Vulnerable, endangered, rare species all comes under the threatened species. These are those threatened species which are very less in number and usually confined in a specific area. ये already पहले से ही बहुत ज्यादा कम है, एक specific area के अंदर है, और वेरी थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया. पूरा जो एरिया में मतलब बिल्कुल नंबर जो है बिल्कुल कम है. ओके, though these are not endangered presently but may become endangered due to their less number. अभी तक ये ना endangered है ना vulnerable है. Okay, ना yes, voice is audible. Yes, No, ma'am. ma'am. Okay. ओके, सो रेयर स्पीसीज जो है अभी तक ना इंडेंजर्ड है ना ही वल्नरेबल है, बट ड्यू टू देयर लेस नंबर दे कैन बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, और वल्नरेबल या इंडेंजर्ड हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, बट अभी तक ये क्या है, दे आर नॉट इंडेंजर्ड. ओके, क्योंकि इसका नंबर लेस है, अभी तक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसमें, ना इसका हैबिटेट डिस्टर्ब है ना ही कोई प्रॉब्लम है, बट अगर उसको प्रॉपर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे तो दे बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू देयर लेस नंबर. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. ओके, इसमें बड़े सारे एग्जांपल हैं, इंडियन डेजर्ट कैट है, वाइल्ड यॉक है, घड़ियाल है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रेयर स्पीसीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रेटेंड स्पीसीज. लास्ट क्लास में भी हमने थ्रेटेंड स्पीसीज को डिस्कस किया था. 8 हमने थ्रेटेंड स्पीसीज डिस्कस की थी, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लोअर रिस्क, डाटा डेफिशिएंट, नॉन इवेलुएटेड. ठीक है, आउट ऑफ 8 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट रिमेंबर आपने इन तीनों को लर्न करना अच्छे से, एंड यू ऑल हैव टू लर्न द नेम ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज, द नेम ऑफ सम वल्नरेबल स्पीसीज, एंड नेम ऑफ सम रेयर स्पीसीज. ये ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं. ओके, so this is all about the threatened species. Now next important topic is the conservation of biodiversity. Mridul, I hope you are attentive in the class. Okay, now, so all of you just look into the picture. First of all, what is conservation of biodiversity? So conservation of biodiversity, first of all, just look into the biodiversity is important for sustainable development. You all know कि sustainable development क्या होती है, and you know कि biodiversity is very very important. Biodiversity is playing an important role in maintaining the sustainable development, क्योंकि हमने already we have studied about the value of biodiversity. We all have studied the commercial value, the medicinal value, the genetic, aesthetic and ecological importance. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए we know कि that conservation of wildlife, conservation of biodiversity is very very important. Sustainable development के लिए भी important, and for all these things, for commercial purposes, for medicinal, genetic, इन सब चीज़ों के लिए भी biodiversity is very very important. हो जाएगा the management of biosphere. Okay, for greater sustainable benefit to the present and the future generation. Management of the पूरे biosphere की इस तरह से management करनी in such a way that it provide benefit to the present generation as well as to the future generation. Okay, so this is the conservation of biodiversity, कि हम biodiversity को क्यों conserve करते हैं, especially for the sustainable development. Now, what is the goal of conservation? उस जगह कंजर्वेशन एफर्ट्स फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम एज वेल एज अ सिंगल स्पीसीज. लाइक अगर आप फूड चेन की बात करते हो तो फूड चेन में अगर एक भी स्पीसीज को आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती है. उसने कहा
कंजर्वेशन एफर्ट्स फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है एज वेल एज द सिंगल स्पीसीज. दिस इज द गोल ऑफ कंजर्वेशन. ओके, protecting an ecosystem will ensure, you can see, protecting an ecosystem will ensure that the natural habitat and the interaction of many different species are preserved at the same time. हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को भी प्रिजर्व करना है अकॉर्डिंग टू द गोल. हमारा गोल क्या है कि एनिमल्स को प्रिजर्व करना है, मीन्स टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट एंड ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीसीज. क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के देखो, अगर आप इकोलॉजी देखते हो तो व्हाट इज इकोलॉजी? द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. तभी तो आपका इकोसिस्टम मेंटेन होगा, तभी तो आपकी इकोलॉजी मेंटेन होगी. सो सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज को प्रिजर्व नहीं करना, एक सिंगल हैबिटेट को प्रिजर्व नहीं करना. We also have to preserve the interaction of many different species are preserved at the same time. मतलब अगर एक species के natural habitat को preserve करते हो, एक species को preserve करते हो, तो at the same time we have to preserve the other species of that area also. उनकी interaction को भी देखना हमें, क्योंकि interaction होगी तभी तो proper ecological system maintain होगा. Okay, then अब conservation challenges क्या हैं? उसमें क्या है? Protecting resources for the future can require people to change the way they earn their living today. This line is very important. Protecting resources for the future can require people to change the way they earn their living today. मतलब कि जिस वे में वो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उस मतलब जितना चाहिए उतना यूज करो. ठीक है, उसने कहा रिक्वायर पीपल टू चेंज द वे दे अर्न देयर लिविंग टुडे. मतलब कि यूज इन सच अ वे कि जितनी आपको जरूरत है, सो दैट हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको प्रिजर्व करें. दीज आर द कंजर्वेशन चैलेंजेस, कि हमने कैसे ह्यूमन बींग्स को अवेयर करना है कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे. ओके, यूज तो करनी है रिसोर्सेज, दैट इज द नीड. ओके, बट हाउ टू यूज इट, हाउ टू कंजर्व इट, that is a challenge. Okay, conservation regulations must be informed by soil research and must try to maximize benefit while minimizing economic cost. ठीक है, मतलब उस पे उसमें कंजर्वेशन रेगुलेशन मस्ट बी इन्फॉर्म बाय सॉइल रिसर्च, मतलब कि हमने प्रॉपर उस पर डिस्कशन करनी है, कंक्लूजन निकालना है कि हम उसको बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वाइल मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, सो दीज आर द कंजर्वेशन challenges and goal of conservation. Now this you already know कि advantages क्या हैं and need of biodiversity conservation. First of all, immediate benefits to society. रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए, ये इमीडिएट बेनिफिट है जो डायरेक्ट सोसाइटी को बेनिफिट है. देन दिस यू नो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपके क्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं, बड़े सारे आपके एनिमल्स हैं, जैसे हनी बी है, बड़े सारे इंसेक्ट्स की स्पीसीज हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हैं. ओके, प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज को प्रिजर्व करोगे तभी तो जीन्स को प्रिजर्व करोगे. ओके, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी मीन्स कि हमारे पास जीन्स की वेराइटी होगी. ओके, जीन्स की वेराइटी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करोगे तभी तो जीन्स की वेराइटी होगी हमारे पास. ओके, then ensure sustainable development or sustainable utilization, that you know. then conservation of ecological diversity, एक पूरी इकोलॉजी के अंदर उस पूरी डाइवर्सिटी को कंजर्व करना. ओके, उसने क्या, बायोडाइवर्सिटी लॉस रिजल्ट इन इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन. यू कैन सी इन द पिक्चर कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल दोनों डिटेरियोरेशन होगी. सो इट इज एसेंशियल टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. दिस you know कि this is the need or the advantages of biodiversity conservation. Okay, okay, so all of you जो just now listen, अब ये जो आपके आगे हैं in situ and ex situ conservation, वो तो just introduction थी. This is important, the in situ and ex situ conservation of biodiversity. Okay, so first of all you can see in the picture CBD. Okay, I think you already know ki what is CBD. It is a Convention on Biological Diversity. Okay, Convention on Biological Diversity, CBD, held in June 1992, stressed the need of the conservation of biodiversity. उन्होंने इस चीज पे स्ट्रेस किया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सो सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का जो नीड है, जो एम है, जो गोल है, दैट इज द सस्टेनेबल development. Now this is the important definition of
biodiversity conservation, you all have to read. Conservation is defined as management of human use of the biosphere. Okay, management of the human use of biosphere in such a way that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation, ताकि present generation को भी proper benefit हो, while maintaining its potential to meet the need and aspiration of the future generation. So this is the definition of conservation, and this is very very important definition कि management of the biosphere को हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, उन सबको इस तरह से मैनेज करना है कि वी कैन, उसने कहा इट मे यील्ड द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट टू द प्रेजेंट जनरेशन, ताकि प्रेजेंट जनरेशन को भी प्रॉपर बेनिफिट हो, एंड मेंटेनिंग इट्स पोटेंशियल to meet the need of the future generation. So this is the important definition of conservation. And now you know कि we are having the two basic approaches to wildlife conservation in protected habitat. One is the in situ conservation and second one is the ex situ conservation. So now we will discuss about the in situ and the ex situ conservation. I think you all know about the in situ and the ex situ conservation. You have studied in, maybe you have studied in class 11th also. Yes, everyone, please tell me if you know any. Yes, ma'am. Okay, so just tell me what is in situ conservation. Yes, Astika. Yes, in situ conservation में कौन कौन सी चीजें आती हैं? Just tell me. Any other? Those who know, just give me the answer. In situ conservation, what is the difference with the in situ and the ex situ conservation? Anyone can tell? Yes, Gunjan, Astika, Mridul. Ma'am, in situ conservation, there is a protection of plants and animals in their natural habitat. Whereas in ex situ conservation, the Hmm. plants and animals are conservated outside their natural habitats. Okay. Okay. So yes, this is all about the in situ and ex situ conservation. कि in situ conservation में हम उनको natural habitat के अंदर protect करते हैं. Ex situ conservation mean protection in outside their natural habitat, जहाँ पे हम उनको natural habitat की तरह condition provide करने की कोशिश करते हैं. Okay. So we will discuss about the different type of in situ and ex situ conservation. Okay. सो जस्ट लुक इनटू दिस पिक्चर. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू एंड एक्स सीटू. इन सीटू में आप क्या जाएंगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, सेक्रेड ग्रूव्स और लेक्स. सो ये जो सारी चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रूव्स और लेक्स, ये आपके आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट. देन यू आर हैविंग द एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू कंजर्वेशन में जैसे आपका सीड बैंक, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, देन बोटेनिकल गार्डन, zoological garden, aquarium, that all comes under the ex situ conservation. Okay, now you can see in the picture, it simply mean conservation of species in its natural ecosystem or even in man made ecosystem. मतलब कि हम उसमें जो उसके नेचुरल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करते हैं, या फिर जो मैन मेड इकोसिस्टम है. This strategy emphasizes protection of total ecosystem through a network of protected area. जो एरिया है that is protect, हम उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं. So what is the protected area? You can see in this line. Okay, protected area, an area of land or area specially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity. Protected area क्या है? जो specially maintain है, to maintain, specially dedicated है to maintain the biological diversity. Okay, उसमें there are different categories of protected area. Protected area की different categories हैं. You can see in the picture the biosphere reserve. Okay, this is a biosphere reserve. Then national parks, wildlife sanctuaries. Okay, तो उसने at present we are having 11 major biosphere reserves. This data is important, but इसमें variation हो सकती है. कुछ books में 14 भी है, कुछ में 11 भी है. Okay, 80 national parks, 420 wildlife sanctuaries in our country, covering 4% of the geographic area. This line is very important कि इंडिया में उसने बोला है कि 11 major biosphere reserves, you can write the 14 also. 18 national parks, 420 wildlife sanctuaries, covering 4% of the geographic area.
एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आई थिंक आपको पहले से पता होगा, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ओके, सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क है इंडिया में। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ आपके एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व ये हैं आपके एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये नीलगिरी है, नंदा देवी है, ओके, गल्फ ऑफ म्यांमार है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। देन यू आर हैविंग द नेशनल पार्क, ये आपने लर्न करने हैं, काजीरंगा है, गिर नेशनल पार्क है। ओके, देन एग्जांपल ऑफ सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गाना वर्ल्ड सेंचुरी, देन Abowar Wildlife Sanctuary, okay, Madumalai Wildlife Sanctuary. These are the examples of these biosphere reserves in India and national parks and the wildlife sanctuaries. Okay, so in situ conservation में आपकी तीन important चीजें हैं, national parks, wildlife sanctuaries and the biosphere reserves. So this, just don't forget this, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फर्स्ट नेशनल पार्क है, और ये आपका डाटा है कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। ओके, नाउ सो जस्ट लुक इनटू द पिक्चर। अब आपने ये इसको स्टडी करना है, यू मस्ट नो कि इसको पढ़ने के बाद यू मस्ट नो कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस विद द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, so first of all, what is a national park? You all just read this. A national park is a tract of land reserved and maintained by national government for the welfare of entire wildlife in it. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ने इसको किया है, उसने क्या, मेंटेन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, एंड ऑपरेशन सच एज प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है नेशनल पार्क में। प्राइवेट ओनरशिप राइट एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट परमिटेड, मतलब ये टोटली अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसमें ये सारी चीजें प्लांटेशन, कल्टीवेशन ऑल आर नॉट अलाउड, और प्राइवेट ओनरशिप राइट जो है और हैबिटेट मैनिपुलेशन जो है वो नहीं हो सकता, मतलब उसमें परमिटेड नहीं है। ओके, सो डाटा यू हैव टू लर्न कि 89 नेशनल पार्क्स यहाँ दिए हैं, 66 मतलब 66 दिए थे, 90 मतलब ये ईयरली चेंज होते रहते हैं। सो मतलब आपका इसमें 89 नेशनल पार्क्स हैं एंड दे कवर एन एरिया, इतना एरिया कवर करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, सो उसने कहा पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वर द लोकेशन, एरिया एंड एनिमल फाउंड इन, दिस यू नो डोंट लर्न बट दिस यू मस्ट नो कि नेशनल पार्क कितने हैं, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका फर्स्ट है, और डेफिनेशन इज दैट कि इसमें कुछ भी अलाउ नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है टोटली बैंड है, टोटली नॉट परमिटेड। ओके, देन यू आर हैविंग द सेंचुरीज। सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि जो आपका नेशनल पार्क है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है, बट सेंचुरी इज कंजर्व फॉर द एनिमल्स ओनली, और इसमें टिम्बर, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स जो हैं आर अलाउड प्रोवाइडेड दे आर नॉट अफेक्टिंग द एनिमल। ओके, सो ये मेन डिफरेंस आ गया सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ में। नेशनल पार्क्स में फ्लोरा और फोना दोनों प्रिजर्व्ड होते हैं, सेंचुरीज में ओनली एनिमल्स आर देयर। नेशनल पार्क्स में सारे जो कल्टीवेशन, माइनिंग वगैरह सब कुछ नॉट परमिटेड, बट इसमें जो है ये जो हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं आर अलाउड, जब तक कि वो एनिमल्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके, एंड देयर आर अबाउट 50 सेंचुरीज इन आवर कंट्री, 500 सेंचुरीज। Okay, then you are having the biosphere reserve. Okay, उसने क्या है, recently the concept of biosphere reserve has been evolved by UNESCO man। उसने कहा this you have to learn कि इसकी क्या definition है, और man and biosphere program, this is also important, MABP, the man and biosphere program। उसने कहा टोटल ऑफ 420 बायोस्फीयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, 425, इन इंडिया 14 बायोस्फीयर। सो दिस इज वेरिएशन कि कहीं आपको 11 मिलेंगे, कहीं आपको 14 मिलेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज, 14 यू कैन राइट द इम्पोर्टेंट वन। ओके, नाउ सो व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व? उसने कहा स्पेसिफाइड एरिया in which multiple use of the land is permitted by dividing it into zones। okay, specified area है जिसमें आप multiple use of land is permitted by dividing into zones। I think ये हमने already discuss किया था what is a biosphere reserve, और इसमें 3 zones होते हैं। okay, the core zone, the manipulative zone and the
buffer zone. Okay, core zone, buffer zone and the manipulative zone. Now what is a core zone? No human. core zone mean जो आपका सेंटर में है. You can see in the picture, this is the core zone. No human activity is allowed in the core zone. Then you are having the buffer zone. Limited human activities permitted in the buffer zone. इसमें थोड़ी सी limited human activity होती है. और आपका transition zone है जिसमें transition और आपका जो manipulative zone है, several human activities can occur in the manipulation zone. Okay, so biosphere reserve में उसने कहा कि इसको डिवाइड किया डिफरेंट लैंड्स में, और डिफरेंट जो जोन्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं. ओके, सो कोर जोन में बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, और मैनिपुलेशन जोन में बड़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं. ओके, सो उसने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे पहले किसने दिया था? यूनेस्को. मैन और बायोस्फीयर रिजर्व में. ओके, सो इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है. व्हाट इज यूनेस्को? UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस ये आपने लर्न करनी कि व्हाट इज द मेन, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछते हैं. ओके, सो दिस यू हैव टू लर्न. ओके, so this is all about the biosphere reserve. Now you are having the sacred groves that also comes under the in situ conservation. These are small group of forests with special religious importance in a particular culture and also of mythological importance. मतलब कि इसमें क्या small group of forest हैं जिसमें स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, जिसको उसने कहा है दीज आर अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जो बेसिकली इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. एंड इसमें बड़ी सारी इंडेंजर और रेयर स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज जो वो प्रेजेंट होती हैं. और यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है सेक्रेड ग्रोव्स की, हिल्स में, मेघालय में, अरावली हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय नेटिव पीपल. जो वहाँ के लोग होते हैं वही इसको प्रोटेक्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, क्योंकि उसने कहा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है तो इसको वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वही इसको प्रोटेक्ट करते हैं. Okay, so this is all about the sacred groves. So this is the in situ conservation. Next we are having the ex situ conservation. So in situ conservation is clear? Yes, any problem regarding the in situ? Ma'am. Okay, next you are having the ex situ conservation. ओके, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी यूनेस्को हो गई, IUCN है, साइट्स है, CITES कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बायोलॉजिकल इंडियन फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, वो हो गई. IUCN है, CBD है, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये सारी आपकी जो टर्म्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनकी फुल फॉर्म्स यू हैव टू लर्न क्योंकि एग्जाम में बड़ी बार आती हैं. ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस थिंग. द साइट्स यूनेस्को, UNESCO. ओके, साइट्स है, यूनेस्को है, IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, then CBD, Convention on Biological Diversity. Okay, then you are having the ex situ conservation, conserving the animal and plants away from their natural habitat. जब आप animal और plants को conserve करते हो outside their natural habitat, that is called as ex situ conservation. Ex situ conservation में आप क्या जाएंगे? Seed bank है, germ plasm है, botanical gardens हैं, zoological parks हैं. These all comes under the ex situ conservation. Now ex situ conservation strategies, as such strategies include establishment of botanical gardens, zoos, पोलन ग्रेन्स हैं, टिश्यू कल्चर है, DNA बैंक्स हैं जिसमें हम इन एनिमल्स के सीड्स को, इनके जीन्स को, हर चीज को प्रिजर्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जीन बैंक, दिस इज द इजीएस्ट वे टू स्टोर द जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट. जर्म प्लाज्म मीन द टोटल जीन्स ऑफ ए स्पीसीज. एक स्पीसीज के पूरे जीन्स को आप जर्म प्लाज्म बोलते हो. तो द इजीएस्ट वे टू स्टोर द जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट्स एट लो टेम्परेचर. In seed banks, seeds are stored under minimal life so that they can kept for many years without accumulation of mutation and with a minimum loss of viability. मतलब कि उसको लो टेम्परेचर पे जो है मेंटेन करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं होती हैं, म्यूटेशंस नहीं होती हैं, तो अपने नॉर्मल रहते हैं. ओके, then you are having the field gene bank. Genetic variability can also be preserved by field gene bank under normal growing condition. जब हम उनको ग्रो करते रहते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज को आप बार बार ग्रो करते रहोगे तो उससे भी उसकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो प्रिजर्व रहती है. ओके, देन क्रायो प्रिजर्वेशन जो है इसमें दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें आप सब कुछ जो है
प्रिजर्व करते हो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर, उसने कहा इट इज इन विट्रो, ओके, इन विट्रो कंजर्वेशन होती है, एक होती है ना इन वीवो एंड इन विट्रो, इन विट्रो मीन आर्टिफिशियली जब करते हो। सो उसने डन एट वेरी लो टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। बेसिकली लो टेम्परेचर देने का क्या मीनिंग होता है कि लो टेम्परेचर पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, ओके, मे बी यू नो दिस थिंग कि लो टेम्परेचर पे जो एंजाइमिक एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती है, स्लो, मतलब वो बंद हो जाती हैं। तो जब एंजाइमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो उसमें चेंज नहीं होगा। उसने कहा क्रायोप्रिजर्वेशन इज यूजफुल टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग the plants like potato, seeds of plant, sperms को, eggs को, embryonic tissue of animals, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं। और इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज को जो है उनके जीन्स को भी आप प्रिजर्व कर सकते हो क्रायो प्रिजर्वेशन में, उनके जर्म्स को, उनके स्पर्म्स को, एग्स को, जीन्स को स्टोर करके, ओके। एंड बोटेनिकल गार्डन, उसने कहा इन मोर देन 1500 बोटेनिकल गार्डन अर्बिटोरिया, अर्बिटोरिया क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन जिसमें सिर्फ शर्ब्स और ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। सो इन सच गार्डन्स मोर देन 80,000 स्पीसीज आर फाउंड। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो भी एक्सी2 कंजर्वेशन में आता है। और एग्जांपल इज गिवन देयर, आपको दी हुई है, बोटेनिकल गार्डन है इटली में, बोटेनिकल गार्डन इटली पीसा में है, बोटेनिकल गार्डन नेदरलैंड में। दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द बोटेनिकल गार्डन, ओके। और बोटेनिकल गार्डन में भी हम डिफरेंट स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ओके। नेक्स्ट यू आर हैविंग द जूस, उसने कहा है इन इंडिया इसमें 1800 जूस प्रेजेंट है। सर जूस हैव अबाउट 3,000 स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट, जहाँ पे हम एनिमल्स की स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं। वर्टिब्रेट्स हैं, सम जू हैव कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या होता है, जब आर्टिफिशियल कंडीशन में एनिमल को अलो करते हैं ब्रीडिंग के लिए। देन पोलन स्टोरेज, बड़े सारे प्लांट्स के उसमें पोलन आर स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। बड़े सारे प्लांट्स के जो पोलन है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पोलन बेसिकली, पोलन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ओके। लाइफ ऑफ पोलन इज मच शॉर्टर देन ऑफ सीड विद मैक्सिमम ऑफ 3 years इन सम केसेस। ये तो आपको पता है कि जो पोलन पोलन ग्रेन होता है उसकी लाइफ सबसे छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर यू नो कि इन विट्रो प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीज फ्री मेरिस्टम, क्योंकि व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स के सिंपल सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को लेके प्रिजर्व करते हैं, उनसे हम नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम लैब में उसको करते हैं, तो वहाँ पे जो जो उनका मीडियम होता है वो टोटली डिजीज फ्री होता है। उसने कहा एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स, जो आपके असेक्चुअली या वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। It also permit long-term preservation of roots and proliferation shoots, जो रूट्स और शूट्स, क्योंकि आपको पता है टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या करते हैं, सेल्स टिश्यू लेके हम प्लांट ग्रो कराते हैं, पहले उसका रूट सिस्टम बनता है, उसका शूट सिस्टम बनता है, ओके। सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है जो वेजिटेटिवली, जो सेक्चुअली नहीं, जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स उनमें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द XC2 conservation. Now next you are having the biodiversity hotspot, but this just that we will discuss in the next class. So any problem regarding the in situ and the ex situ conservation, anything you want to ask? No, ma'am. Okay, so this is all about the in situ ex situ conservation. इसमें आपके सारे आ जाएंगे, सीड बैंक है जी, इन situ में, ex situ conservation में क्रायो प्रिजर्वेशन है, जर्म प्लाज्म को हम प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर कि ऑल ऑफ यू, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN, साइट्स, CBD और यूनेस्को जो है, लर्न दीज थिंग्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपने सब कुछ पढ़ना है, सेंचुरीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सम इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनके नेम लर्न करने हैं। एंड जस्ट रिमेंबर कि बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके मैरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एंड एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, ma'am. Okay, no question? No, Yes. ma'am. So can I end the session? Yes.
Yes, ma'am. Okay, so all of you just submit your test today. Okay, only 3-4 students are left. 12th they all have done, but 12th B some are left, so just submit your test. Okay. ओके एंड सॉल्व द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑल्सो. जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनको रीड करो. इफ यू डोंट हैव द बुक जस्ट टेल मी, आई विल सेंड यू द टेक्सचुअल क्वेश्चन. इफ यू वांट आई विल सेंड द आंसर्स ऑल्सो. ओके. Okay, ma'am. ओके.